So today we will revise the chapter of geography, and that is air. First is, what is atmosphere? Cover of air that surrounds the earth. Cover of air that surrounds the earth is called atmosphere. Cover of air that surrounds the earth is called atmosphere. So what is atmosphere? Cover of air that surrounds the earth is called atmosphere. Learn it. Two gases जो कि हम कहेंगे मेन है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, learn it, 78%, ऑक्सीजन 21%, other gases 1%. ये सिर्फ 1% है. Two main gases. Which gas? Two main gases which make bulk of the atmosphere. तो वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन that is 78%, ऑक्सीजन that is 21%. तो आपको अगर बाई चांस से क्वेश्चन आ भी जाए तो इतना सा डायग्राम बनाने में 2 मिनट लगने हैं, पेंसिल के साथ बनाने में. डायग्राम ही आंसर है, ठीक है ना. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%. अब जो बच्चे पूरा एक्टिव होके बैठे हैं ना, उनका ये लेसन आज अभी लर्न, एंड इसके बाद आपको करना भी नहीं पड़ेगा. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%. नेक्स्ट इज, which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? You know it very well, that is carbon dioxide. Carbon dioxide. Weather. What is weather? Weather is the condition of atmosphere. Weather is the condition of atmosphere that changes from minute to minute, that changes from day to day, hour to hour, minute to minute. Weather is the condition of atmosphere that changes from day to day, hour to hour, minute to minute. अभी मैं बोलूं अभी इतनी धूप है, हो सकता है अभी 5 मिनट के बाद क्लाउडी हो जाए, हमें क्या पता. Weather is the condition of atmosphere that changes from day to day, hour to hour, minute to minute. For example, today is sunny day, tomorrow may be rainy day, या tomorrow may be cloudy. ठीक है, एग्जाम्पल साथ में बताते हैं. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज सनी डे, टुमारो मे बी रेनी डे, टुमारो मे बी रेनी डे. नेक्स्ट इज 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. तो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल. साइक्लोनिक, रिलीफ, कन्वेक्शनल. अभी मैं सबको रिपीट भी करूंगी, सबको एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्राम. दिवांग, वेयर आर यू? साइक्लोनिक, रिलीफ को ही हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. पेपर में ओरोग्राफिक आ गया तो डरना भी नहीं है कि ओरोग्राफिक तो वी हैव नॉट डन, ओरोग्राफिक ही रिलीफ है. इज इट क्लियर? साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक, एंड देन कन्वेक्शनल रेनफॉल. नेक्स्ट, व्हाट इज एयर प्रेशर? द प्रेशर exerted by weight of air on the earth's surface is called air pressure. The pressure, what is air pressure? The pressure exerted by weight of air on earth's surface is called air pressure. Is called air pressure. अब 1 मिनट में यहाँ पे बोलूंगी, listen carefully. On moon there is no air and no air pressure. आपको पता है मून पे ना तो एयर है ना ही एयर प्रेशर है. एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर कहाँ से होएगा? नेक्स्ट,
अब जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाते हैं हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहन के जाना पड़ता है. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst and the astronauts would bleed. Bleeding हो जाती है, blood निकलता है उनके body parts में से. उन्हें स्पेशल सूट्स पहन के जाना पड़ता है क्योंकि देयर इज नो एयर प्रेशर ऑन द मून. Standard unit of measuring temperature is degree Celsius. Who invented it? It was invented by Anders Celsius. It was invented by Anders Celsius. Wind is named after the direction from which it blows. For example, हम कहते नहीं है ईस्टलाइज विंड, वेस्टलाइज विंड. विंड का नाम उसकी डायरेक्शन से पड़ता है, वो जिस डायरेक्शन से आती है वही नाम पड़ जाता है. अगर वो विंड वेस्ट की साइड से आती है तो वी आर सेइंग इट वेस्टलाइज विंड. अगर वो विंड ईस्ट की तरफ से आती है तो वी आर सेइंग ईस्टलाइज विंड. विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच इट blows, and there are three types of winds. First is permanent wind. Permanent wind is also known as trade wind, westlies wind and eastlies wind. Permanent wind के और भी नाम है, trade wind, eastlies wind, westlies wind. And permanent wind जो है ना पूरा साल throughout the year blows in the same direction. Throughout the year this wind blows in same direction. Listen again. Permanent wind is also known as eastlies wind, westlies wind or trade wind, and it always throughout the year it blows in the same direction. Next, seasonal wind. So these winds change their direction according to the different seasons. For example, monsoon wind. Seasonal wind change its direction according to different seasons. अब इसमें हम बताएंगे for example monsoon wind. Next is local wind. Wind that blows in a particular area. Particular area में जो blow करती है during a particular period of the day or year. Wind that blows in particular area during the particular period of a year is called local wind. For example, Loo that blows in summers in northern plains. Loo blows in summers in northern plains. Three types of winds: permanent wind, seasonal wind, local wind. Permanent wind क्या होती है? Blows in same direction throughout the year. इसके दूसरे नाम क्या है? Eastlies wind, westlies wind and trade wind. अब मैंने बोली seasonal wind. Change its direction. Wind that change its direction with the change in season. For example, monsoon wind. Local wind blows in a particular area in a particular period of the year. That is known as local wind. For example, Loo blows in northern plains in summer season. तो Loo कौन सी wind हुई? Local wind. So next, movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Movement of air, आपको पता है ना, air always move from high pressure area to low pressure area, and this movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Is called wind. कितने तरह की wind होती है? Three types. You know it very well ना. Degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. Degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. What is temperature? Degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. What is temperature? Degree of hotness and coolness of the air is known as temperature. Wind, movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. Three types of wind. Wind, air always move from high pressure to lower pressure area. मैं बोलूं correct this statement. मैं आपको ऐसे बोलूं,
आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए करेक्ट दिस स्टेटमेंट, मैं लिखूं wind always moves from low pressure area to high pressure area, तो आप इसको क्या करेक्ट करके लिख दोगे, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मैंने उल्ट करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ आप, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, different layers of atmosphere you have done. First is troposphere, then stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. हम कहाँ पे रहते हैं, troposphere. We live on troposphere. All weather phenomena occur at troposphere. सारे weather changes कहाँ पे होते हैं, troposphere में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी cloudy होता है, कभी rainy होता है, कभी sunny होता है, कभी windy होता है ना। All weather changes occur on troposphere. Human beings we live on troposphere. कहाँ पे वेदर चेंजेस नहीं होते, स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी लेयर विदाउट क्लाउड्स है, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड गुड फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। उस लेयर में क्या फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन्स। नेक्स्ट मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर जो दैट इज meteorites burn up in this layer when they entered from the space. Meteorites start burning when they entered from the space. Thermosphere, thermosphere को हम ionosphere भी कहते हैं, we also call it ionosphere. and यहाँ पे satellites हैं, और हम कहेंगे कि ये रेडियो एंड टेलीविजन, ये जो सारा प्रोग्राम्स हम देखते हैं, हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स हैं इस लेयर में। किस लेयर में सैटेलाइट्स हैं, थर्मोस्फीयर। सैटेलाइट्स आर फाउंड इन दिस लेयर, विच लेयर, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सबसे अपर लेयर है, ठीक है, एंड हैज वेरी थिन एयर, थिन एयर है इसमें, वेरी थिन एयर, वेरी थिन एयर इज फाउंड इन एक्सोस्फीयर के मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। meteorites burn in this layer, which layer, mesosphere. It is good for flying aeroplanes, stratosphere. We live in this layer, we live in this layer, troposphere. Is it clear? Learn like this. अपने आप आपके MCQ बन रहे हैं, देखो, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ आप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनफॉल। हमारा देवांग किधर है, आ जाओ देवांग, विद योर कॉपी पेंसिल, कम। First is cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall. 3 types of rainfall is given. First कौन सी दी हुई है, cyclonic rainfall. How to learn? सबसे पहले तो आपको लैंड, इसको भी रब कर देते हैं, अब इसको मैं, ये तो है डायग्राम, ठीक है, कोल्ड करंट, कोल्ड एयर, वार्म एयर, ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम, गिवन इन योर बुक, सो नो नीड, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं एक बार कैसे करती हूँ देखना। सबसे पहले कोल्ड एयर, ये करंट बनते कैसे हैं, कोल्ड एयर व्हेन मीट वार्म एयर, या वार्म एयर मीट कोल्ड एयर, कुछ भी जब ये मिल जाते हैं तो करंट आर फॉर्म्ड, क्या बन जाते हैं, करंट, करंट, करंट आर फॉर्म्ड। वार्म एयर एंड कोल्ड एयर दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं, नो नीड टू राइट, सिर्फ मैं बताने के लिए कह रही हूँ, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर जब मिलती है तो क्या बन जाते हैं, क्या बनते हैं, फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट आर फॉर्म। वार्म एयर, ये वार्म एयर है एग्जांपल, यहाँ ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, दोनों मीट कर गई एंड क्या बन गए, फ्रंट, ये फ्रंट बन गए। अब वही मैंने इधर कर दिया, इसको अब रब करते हैं। अब हमने कहना है, इज इट क्लियर, एक मिनट, नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। cyclonic rainfall, it occurs
when warm front meet cold front. It occurs when warm front meet cold front. It occurs when warm front किसको मिलता है? cold front के साथ मिल जाता है. when warm front meet cold front, heavier cold air sinks towards the grounds. heavier cold air, अब ये cold air है, warm and cold front. अब इसमें heavier cold air, अब ये नीचे की तरफ sink हो गई because this is heavy, cold air is heavy and it sinks down. Hot air, it is lighter in weight, so it moves upward. Hot air light होती है weight में. आप एक मिनट, आप 2 बैलून्स ले लो, एक को वैसे ही आप फुला लो और एक में आप गैस भरवा के लाओ बाहर से. कौन अप जाएगा? जिसमें आपने गैस भरी है. ठीक है, दूसरा वाला तो नीचे ही गिर जाएगा क्योंकि वो हैवी है. वही चीज मैं बोल रही हूँ. वार्म एयर जो है वो लाइट होती है, दैट्स व्हाई राइजेस अप, वो अप चली जाती है, अप जाके कूल हो जाती है. व्हेन इट राइजेस अप इट कूल्स डाउन. हॉट एयर is lighter, so it moves upward. As it moves upward, it becomes क्या हो जाती है? cool, and condensation takes place. Clouds are formed. Condensation हुई तो ये क्या बन गए? Clouds are formed. So heavy rainfall occurs, and this type of rainfall is called cyclonic rainfall. This type of rainfall is called cyclonic rainfall. Listen again. It occurs when warm front meet the cold front. It occurs when warm front meet the cold front. Cold air is heavier, so it sinks down towards the ground. Warm air is lighter, so that's why moves upward. Upward चली गई. Warm air is lighter and moves upward. Upward जाके वो cool हो गई. It becomes cool. Condensation takes place. Clouds are formed and heavy rainfall occurs. This type of rainfall is known as cyclonic rainfall. I think now it is clear. Warm front, cold front जब meet करते हैं एक दूसरे से तो cold air जो है वो heavy होने के कारण sinks down और वार्म एयर लाइट होने के कारण गोज अपवर्ड, अप जाके कूल्स डाउन होके कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. कंडेंसेशन हुई तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, क्लाउड्स बने, देन हैवी रेनफॉल अकर्स एंड दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस रेनफॉल को? साइक्लोनिक रेनफॉल. नाउ इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गई रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक. रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक. रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल. रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल. सेकंड, ओरोग्राफिक रेनफॉल. रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल. ये वाटर बॉडी, यहाँ पे वाटर बॉडी बना दो. इधर लीवर्ड साइड, इधर विंडवर्ड साइड, इधर क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल अकर इन दिस एरिया. इस एरिया में विंडवर्ड साइड में आप हैवी रेनफॉल शो करोगे. नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? इसमें आप कहोगे कि वाटर जो है ना, सबसे पहले आप बताओगे वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडी. वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम वाटर बॉडी.
एंड इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स होते हैं, राइजेस अप, कूल्स डाउन। देखो मैंने वाटर बॉडी शो की है, वाटर इवेपोरेट हुआ एंड इवेपोरेट होके वाटर वेपर मूव्स अप, राइजेस अप होके कूल्स डाउन हो गए, कूल्स डाउन होके कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। व्हेन क्लाउड्स स्ट्राइक द माउंटेन, अब ये बीच में आ गई माउंटेन, व्हेन क्लाउड्स स्ट्राइक द माउंटेन, अब क्लाउड्स माउंटेन से स्ट्राइक कर गए, टकरा गए, तो हैवी रेनफॉल अकर्स टुवर्ड्स द विंडवर्ड साइड। इस साइड रेनफॉल हुई, ये साइड ड्राई रह गई, दिस साइड रिमेन्स ड्राई एंड कॉज रेन शैडो एरिया। ये वाली लीवर्ड साइड जो है ना वो ड्राई रह गई क्योंकि हैवी रेनफॉल विंडवर्ड साइड हो गई सारी, एंड लीवर्ड साइड रिमेन ड्राई एंड दैट इज नोन एज रेन शैडो एरिया। उसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। सुनो फिर, वाटर बॉडी, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडी, water vapors are formed, moves up, when they moves up becomes cool, condensation takes place, clouds are formed, and when these clouds strike with mountains, किससे टकरा गए? माउंटेन से। rainfall occurred, heavy rainfall, and that rainfall occurred only in windward side and leeward side remain dry, leeward side क्या रह गई? dry, and that is known as rain shadow area। leeward side को हम क्या कहेंगे? rain shadow area। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट इज convectional rainfall। third type of rainfall is convectional rainfall। convectional, आपका एक क्वेश्चन है ना, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कन्वेक्शनल, उसी में बच्चे उन्होंने कह देना एक्सप्लेन दिस रेनफॉल विद डायग्राम, बाय ड्राइंग डायग्राम। कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें आप सबसे पहले तो बनाओगे लैंड, यहाँ पे आप बनाओगे सन, नेक्स्ट लैंड एंड सन बना दो, एंड देन कंडेंसेशन, यहाँ पे क्लाउड्स बता दो, एंड हैवी रेनफॉल इस वे से। अब इसमें आप क्या बताओगे? व्हेन सन, इसीलिए मैंने सन बनाया, अब आपको सन से याद रहेगा, सन बुक में नहीं बना हुआ बट आप बना लेना। व्हेन सन हीट्स अप द, व्हेन सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, water evaporates and when form water vapor। Listen again, when sun heats up the surface of the earth, when sun heats up the surface of the earth, water क्या हो जाएगा? evaporate and forms water vapor। when land heats up, जब land भी गर्म हो गई, it warms the air above it, it warms the air above it। अब उसने एयर को क्या कर दिया? वार्म कर दिया। वार्म एयर राइजेस अप, वार्म एयर किधर चली गई? राइजेस अप, कूल्स डाउन, वार्म एयर अप जाके क्या हो गई? कूल्स डाउन, क्या बन गई? कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड कॉज हैवी रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड cyclone, convectional rainfall। this type of rainfall is called convectional। फिर सुन लो, when sun heats up the surface of the earth, water evaporates, and when sun heats up the surface of the earth, water क्या हो जाएगा? evaporates and form water vapor। air above the earth also gets warm, air above the earth also gets warm and warm air rises up। जैसे ही up जाएगी, it cools down, condensation takes place, clouds are formed, heavy rainfall occurred, and this type of rainfall is called
कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल में आपने सन बनाना है। इज इट क्लियर? ओरोग्राफिक में आपने लीवर्ड विंड वर्ड बनाने हैं माउंटेन बना के। इज इट क्लियर? इधर आपने साइक्लोनिक में फ्रंट बनाने हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कौन से हैवी होने के कारण नीचे आ जाते हैं? कोल्ड। कोल्ड एयर ड्यू टू हैवी इट सिंक्स डाउन। वार्म एयर एज इट इज लाइट इट मूव्स अपवर्ड। अप जाके कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बने, हैवी रेनफॉल अकर्ड, साइक्लोनिक रेनफॉल होगी। व्हेन वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी, वाटर इवेपोरेट हुआ, जब वाटर वेपर बने, वाटर वेपर अप गए, ठीक है, अप जाने से कूल हो गए, कूल होने से कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स बने। व्हेन द क्लाउड स्ट्राइक विद माउंटेन, किससे टकरा गए? माउंटेन। तो विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज अकर्ड? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल अकर्ड। नेक्स्ट, अब ये when sun heats up the surface of the earth, water evaporates, form water vapor. Air above earth also gets heated up. एयर भी तो गर्म होएगी। अब warm air rises up, वो अप चली गई, cools down, cools down होके कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन होके clouds are formed and heavy rainfall occurred. This type of rainfall is called convectional rainfall. This type of rainfall is called convectional rainfall. I think all are clear.